Assalamu alaikum. We're going to start lecture number 8, and this is in continuation to chapter number 4, which is about small business ventures and entrepreneurship. लास्ट लेक्चर में हमने जो चीज़ें की उसका एक बहुत क्विक रिकैप ले लेते हैं. लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 4 के लेक्चर नंबर 7 में हमने डिफाइन किया कि स्मॉल बिजनेस क्या होता है, व्हाट इज़ अ स्मॉल बिजनेस. देन वी वेंट ऑन टू tell you about that these small businesses are run by entrepreneurs. We defined what an entrepreneur is for you. We further defined what are the various characteristics needed to become a successful entrepreneur. Then we went on to talk to you about that what are the financial reasons for starting up a small business and what are the non-financial reasons for starting up a small business. And then finally we ended our lecture number 7 with basically comparing small businesses practices of, let's say, yesterday years with small businesses practices of today years. We talked about that yesterday there were more men and no females operating small businesses. Today there are as many number of females as males who have small businesses. So basically we made a few comparisons between business trends or small business trends of yesterday's years and today, or these times business practices. Finally we ended our lecture number 7 with basically discussing the importance of internet for today's small businesses. Now today we're going to start lecture number 8, and lecture number 8 is again for the very same chapter number 4, which is understanding entrepreneurship and new ventures. Now जब भी आप किसी भी स्मॉल बिजनेस की बात करते हैं, चाहे स्मॉल बिजनेस को स्टार्ट करना हो या स्मॉल बिजनेस को ऑपरेट करना हो, you need to make a business plan. Now what's a business plan? A business plan is basically a written document, a black and white document which would tell you everything. It's going to tell you कि आपके goals क्या हैं, it's going to tell you कि आपकी strategies क्या हैं, it's going to tell you कि आप किस तरीके से financing अपने लिए करेंगे. So the very first thing whenever you're starting and operating a small business, the very first thing that you need to do is make a business plan. Now this business plan will be regarding two things. First up, are you buying an existing business? क्या आप एक ऐसा बिजनेस खरीद रहे हैं जो कि ऑलरेडी established है, किसी और ने establish किया, उससे चल नहीं रहा है, क्या आप उससे वो बिजनेस खरीद रहे हैं, या you're starting it from scratch, you're the very first person जो कि वो बिजनेस from zero, from step 1 start कर रहा है. चाहे वो existing business हो या एक new business हो, आपको उसके लिए financing भी चाहिए होगी. और ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सब कुछ आप जो बता रहे होते हैं, चाहे वो फाइनेंसिंग के बारे में हो या बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में हो, ये आप बिजनेस प्लान में बता रहे होते हैं. नाउ व्हाट इज a business plan and what are the various things a business plan will include? Basically a business plan, as I said earlier, is a written document, a black and white document. वो black and white document क्या करता है? It basically tells an individual कि जी आपका business क्या है, आपके business क्यों start कर रहे हैं, what are the goals and objectives of your business. Now again, one very important thing or one very important aspect of a business plan is that when you're making a business plan, you're writing things down. When you're writing things down, the importance of that particular thing is in front of you. अगर आप वर्बली बात कर रहे हो ना तो आपको इतनी इंपॉर्टेंस फील नहीं होती, लेकिन जब चीज़ों को लिख रहे होते हैं तो आपको पता चलता है कि जो मैं काम करने जा रहा हूँ या जो मैं काम कर रहा हूँ वो कितना बड़ा है, उसमें कितनी रिसोर्सेज यूज़ हो रही हैं, उसमें कितनी फाइनेंसिंग यूज़ हो रही है और वो कितना इम्पोर्टेंट है. Or because of this business plan, because of writing of this business plan, what you do is you understand the importance of starting up a new business. Now एक business plan क्या क्या चीज़ें include करेगा? The very first thing that a business plan will include is goals and objectives. आप business क्यों शुरू कर रहे हैं? What's the primary reason for starting up your business? आपने अपने लिए क्या milestone set किए हुए हैं कि मेरी 6 महीने के बाद मेरे business ने ये चीज़ achieve कर लेनी है. After a year, my business should be at a point whereby we should have achieved these goals and these objectives. So the very first thing that you do in a business plan is that you set goals and objectives for your business. Now these goals and objectives should have 2-3 characteristics. First up, they should be achievable. आप ऐसे goals ना set कीजिए जो कि achieve ही नहीं हो सकते, जो कि impossible हैं.
हैं। आप ऐसे गोल सेट करते हैं जो कि अचीवेबल हो। सेकेंड, क्वांटिटेटिव टर्म्स में होते हैं। आई नीड टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ 500 मिलियन, दैट्स अ क्वांटिटेटिव गोल। अगर मैं ये गोल सेट करूँ कि जी आई नीड टू अर्न अ प्रॉफिट, दैट्स नॉट अ गुड इनफ गोल। वाई? बिकॉज कितना प्रॉफिट अर्न करना है? You need to be very, very clear in your goals and objectives as to what you want your business to achieve. Now, second thing that you do is that you do a sales forecast. आप ऐसे business शुरू नहीं कर सकते. It's not like कि आज आप सोए, you had a dream कि जी business शुरू कर दो और ये चीज़ करो और business शुरू कर दिया. Business don't start like this. आप market analysis करते हो, आप market से information collect करते हो, आप research करते हो. क्यों ये काम करते हो? To find out what are the needs and wants of your customers. जब कस्टमर्स की नीड्स एंड वांट्स आइडेंटिफाई कर देते हो तो फिर आप देखते हो कि जो आप प्रोडक्ट लेकर मार्केट में जा रहे हो, क्या वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली कस्टमर्स की इंडिविजुअल की नीड्स एंड वांट्स को फुलफिल कर सकती है। और अगर कर सकती है देन यू फिगर आउट कि अच्छा फिर मेरी सेल्स क्या होंगी। अगर मैं इस मंथ में लॉन्च करूंगा तो बाय द ईयर एंड मुझे कितना प्रॉफिट होगा, मेरे कितने रेवेन्यूज आएंगे और मेरी सेल्स कितनी होंगी। सिमिलरली जब आप सेल्स फोरकास्ट कर रहे होगे तो आप ये भी देख रहे होगे कि आपके बिजनेसेस की स्ट्रेंथ्स क्या है या आपके बिजनेसेस की वीकनेसेस क्या है, ताकि जो आपके स्ट्रेंथ्स हैं उनके बारे में आपको पता हो और आप मार्केट की अपॉर्चुनिटी को देखते हुए अपने स्ट्रेंथ्स को यूज करते हुए you can benefit from that. And similarly you should also be aware of your weaknesses, so that when you're aware of your weaknesses you know that you need to work on those weaknesses and get rid of those weaknesses. So the second thing that you do in a business plan is you do a sales forecast. The third thing that you do, you summarize strategy. Okay, I've set a goal for myself. मुझे मालूम है कि मुझे क्या अचीव करना है, लेकिन उस पॉइंट को अचीव करने के लिए मुझे कौन सा स्टेप 1, कौन सा स्टेप 2 और कौन सा स्टेप 3 लेना है, वो स्ट्रैटेजी है। सो बेसिकली व्हाट अ स्ट्रैटेजी इज गोइंग टू बी, द स्ट्रैटेजी इज गोइंग टू बी दैट ब्लूप्रिंट एज व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू, व्हाट एक्शंस आर यू सपोज्ड टू टेक टू अचीव दैट पर्टिकुलर गोल और दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव। जब आपने स्ट्रैटेजी सेट कर ली तो बिजनेस प्लान में तीसरी चीज क्या आएगी कि आप उस स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। सोच तो मैंने लिया कि मैंने ये काम करने के लिए ये सारी चीजें करनी है या ये ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए ये सारे काम करने हैं ना, इन सारे कामों को अगर मैं सिर्फ पेपर पर लिखूंगी और सिर्फ लिख दूंगी तो वो अचीव हो जाएंगे? कभी भी नहीं अचीव होंगे। यू वुड नीड टू एक्चुअली इम्प्लीमेंट देम, स्टार्ट वर्किंग ऑन देम, एंड दैट इज व्हाट वी मीन बाय कि आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि आप उसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, कितने आपको बंदे हायर करने, कितने एम्प्लॉयज को आप हायर करेंगे, कितनी फाइनेंसिंग चाहिए, कितना पैसा आपको लेना है, लोन लेना है या अपना पैसा लगाना है। सो यू गोइंग टू थिंक अबाउट ऑल दीज थिंग्स एंड देन implement the strategy that you have thought, which is going to achieve the goals and objectives that you have set for yourself. Then what you're going to do is अपने business plan में आप अपनी financial statements की के बारे में सोचते हैं कि आप किस किस किस्म की financial statements बनाएंगे या आप अपने business को किस तरीके से finance करेंगे। सबसे पहले आप cash budget की बात करते हैं, which is the most important thing. You make a budget. I have this much amount of money. I'm going to use it in these heads. I'm going to use it in these things. I'm going to purchase these things. इनकी cost ये होगी. At the end of the year end मेरे पास इतना पैसा बचेगा. That is what a budget is, right? Another example which is a little unrelated to the subject that we're doing is कि all your mothers make a budget. बिल्कुल महीने के शुरू में when your fathers, आपके अब्बू जब आपकी अम्मी को पैसा दे देते हैं तो क्या करती है आपकी अम्मी पूरा बजट बनाती हैं कि जी मुझे इतने पैसे मिले, इसमें से ग्रोसरी पे मैंने इतना खर्च करना है, वेजिटेबल पे मैंने इतना खर्च करना है, बिल्स पे मैंने इतना खर्च करना है, बेटे को इतनी पॉकेट मनी देनी है, बेटी को इतनी पॉकेट मनी देनी है, रेंट पे इतना खर्च करना है। दैट्स अ बजट दैट शी मेक्स एंड वंस शी मेक्स इट शी गेट्स टू नो कि कहाँ कहाँ उनके एक्सपेंसेस हो रहे हैं एंड द एंड ऑफ द मंथ उनके पास कितना पैसा बचेगा। सेम थिंग यू डू फॉर अ बिजनेस। मुझे रेंट दे देना है, मुझे रॉ मटेरियल यहाँ से लेना है, मुझे बिजली का बिल इसको देना है, मुझे सैलरीज इतनी देनी है, मेरी सेल्स इतनी होंगी, मेरे रेवेन्यूज इतने आएंगे और मेरा प्रॉफिट या मेरा लॉस या मेरा प्रॉफिट इतना होगा। सो दैट इज व्हाट अ बजट इज एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आपके जो बिजनेस प्लान है उसमें आप बजट जरूर बनाते हैं। देन यू टॉक अबाउट एन इनकम स्टेटमेंट एज वेल। इनकम स्टेटमेंट और समटाइम्स एज वी कॉल इट अ स्टेटमेंट ऑफ
profit and loss. It's basically a statement. We're going to do it towards the end of the course. It's basically a statement which tells you or which tells the business के जो आपने पूरे साल में काम किया या एक पूरी ड्यूरेशन में काम किया उससे आपके बिजनेस को प्रॉफिट मिला या लॉस मिला. Next thing that you make is a balance sheet. Balance sheet basically summarizes कि आपके बिजनेस के पास कितने assets हैं, कितनी liabilities हैं और कितना owner equity. Assets क्या चीज़ हो गए? Assets वो सारी चीज़ें होंगी जिससे आपकी कंपनी को पैसा आ रहा है, या वो सारे assets, for example land is an asset, building is an asset, आपकी इन्वेंट्री या रॉ मटेरियल इज एन एसेट, आपका कैश इज एन एसेट. ऑन द अदर हैंड लाइबिलिटी क्या होती है? लाइबिलिटी इज अगर आपने किसी बैंक से लोन लिया है वो लाइबिलिटी है, या अगर आपने कोई बिल देना है वो लाइबिलिटी है. सो लाइबिलिटी इज बेसिकली मनी गोइंग आउट ऑफ योर बिजनेस. ओनर्स इक्विटी इज कि वो पैसा जो आप बिजनेस में री इन्वेस्ट कर दो, दैट इज व्हाट ओनर्स इक्विटी इज. अगेन बैलेंस शीट इज समथिंग दैट वी विल स्टडी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द कोर्स एंड वी विल स्टडी इट इन ग्रेट डिटेल. सो डोंट रियली वरी राइट नाउ. इस टाइम पर आपके लिए सिर्फ ये जानना जरूरी है कि इनकम स्टेटमेंट आपको प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बताती है और बैलेंस शीट आपको एसेट्स, लायबिलिटीज और ओनर इक्विटी के बारे में बताती है. The fourth thing that a business plan gives is it gives break even. Now break even, what is break even? Break even is basically a point whereby there is no profit and no loss. So that means कि जब आपका break even point आ जाता है उस point से ऊपर कंपनी प्रॉफिट पर होती है और उस पॉइंट से नीचे कंपनी जो है वो लॉस पर होती है. लेट्स से अज्यूम कि मेरे बिजनेस में द ब्रेक इवन पॉइंट इज 500 यूनिट्स. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि जब मैं 501 यूनिट प्रोड्यूस करूंगी, that means that my company is going to go into profit. And if I produce 499 units, that means that my company will still be in loss. And if I produce exactly 500 units, that means that my company is neither in profit nor in loss. Right, so I hope that you're clear on what break even is. So जब भी हम एक business plan की बात करेंगे, एक business plan is going to include all these things. It's going to include your goals, it's going to include your objectives, it's going to include your strategy, it's going to include कि आप अपनी strategy को कैसे implement करेंगे, it's going to talk about कि आपकी statements, financial statements क्या होंगी, आपकी income statement कैसे बनेगी, आपकी बैलेंस शीट कैसे बनेगी, आपका कैश बजट क्या होगा, या आपका ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा. So in short, a business plan gives the person who's making a business plan a very clear idea of what the business is going to be. कितना वो successful हो सकता है, या it becomes a blueprint for your business. It tells कि आपका business किस तरीके से proceed करेगा आगे, आपने किस तरीके से अपने goals को achieve करना है, किस तरीके से objectives को achieve करना है. It's a very clear picture of what you want your business to be in the future. So that is what a बिजनेस प्लान इज. नाउ जब भी हम बिजनेस प्लान्स की बात करते हैं, जैसे मैंने पिछली स्लाइड्स में बताया कि आप कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं तो आपके पास 2-3 मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं. सबसे पहला ऑप्शन जो आपके पास हो सकता है कि आप एक एग्जिस्टिंग बिजनेस को खरीद लें. आपका कोई ऐसा बिजनेस है जो कि ऑलरेडी किसी और के पास है, एग्जिस्ट कर रहा है, उससे नहीं चल रहा है, सो यू पे दैट पर्सन सम अमाउंट ऑफ मनी एंड यू बाय दैट बिजनेस फ्रॉम दैट पर्सन. That's the first option that you have when you are starting up your business. Now the second option, and again when you're buying a business from some other person, again you need to see a few things. You need to see किस business के assets कितने, you need to see how much liabilities does that business own to other businesses. You need to see that whatever goods and services that business is producing, is it really needed by customers? क्या वो customers की needs and wants को fulfill कर भी रहा है या नहीं कर रहा? और अगर नहीं कर रहा है या उसके liabilities ज़्यादा हैं या assets कम है, तो obviously you're not going to decide कि आप उसको खरीदें, आप उसको बेशक नहीं खरीदें. So whenever you're buying an existing business, you need to see if the business be profitable or not. क्या उस business की need है या need fulfillment वो business कर रहा है या नहीं कर रहा. So whenever you're starting a business, the first option that you have is to buy an existing business. Next is you start your business from scratch. From point zero, आप from the basics अपने business को ऊपर खड़ा करते हैं. Now whenever you're starting up your own business, you need to see or ask yourself a few questions. The very first questions is, who are my customers? मेरे customers कौन है? मैं जो product को या कोई सी good को या कोई service को market में लेकर आ रहा हूँ, इसको कोई खरीदेगा भी या नहीं खरीदेगा?
कौन है कस्टमर्स मेरे जो कि मेरी प्रोडक्ट को खरीदेंगे। सेकेंड अप, मैं अपने बिजनेस को कहाँ सेटअप करूँगा। ठीक है, मुझे पता है कि कस्टमर्स भी हैं, लोगों की नीड्स एंड वांट्स भी हैं, मेरा बिजनेस या मेरी प्रोडक्ट जो है इस पर्टिकुलर नीड्स एंड वांट्स को फुलफिल करेगी, बट वेयर, मैं कहाँ से अपने बिजनेस को सेट करूँगा। मेरी प्रोडक्ट की प्राइसिंग कैसे करूँगा, व्हाट वुड बी द प्राइस ऑफ माई पर्टिकुलर प्रोडक्ट। क्वांटिटीज़, कितनी क्वांटिटीज़ में मैं रॉ मटेरियल खरीदूंगा, कितनी क्वांटिटीज़ में मैं फिनिश गुड्स प्रोड्यूस करूंगा, और कितनी क्वांटिटीज़ में मैं आगे उसको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। देन यू ऑल्सो थिंक अबाउट योर कॉम्पिटिटर्स। जो मैं चीज़ मार्केट में लेकर आ रहा हूँ, क्या कोई और कंपनी है जो ऑलरेडी इसको प्रोड्यूस कर रही हो। If the answer is yes, then you think about the competition. अच्छा, कौन सा कंपटीशन है, वो क्या कर रहे हैं, उनकी प्रोडक्ट कैसी है, उसकी प्राइसिंग कैसी है, वो पैकेजिंग कैसे कर रहे हैं, और अगर नहीं है तो शायद थोड़ी सी सरदर्दी कम हो जाती है। Then you say, okay, I'm the first one to come into the market. There's no competition good for me. And then you talk about product differentiation. कि अच्छा, अगर कोई competition है, then how is my product different from the product of the competition? Do I price it less? क्या मैं उसकी प्राइसिंग कम करूं, उसकी प्राइस कम रखूं कंपटीशन से। शुड माई टेस्ट बी डिफरेंट, क्या मेरी पैकेजिंग डिफरेंट होनी चाहिए, या मैं कोई ऐसा मॉडल यूज़ करूं, अरे जफ़र को यूज़ कर लेता हूं क्योंकि आजकल वो बहुत टॉप पर जा रहा है, ही इज़ वर्किंग इन सो मेनी इंडियन मूवीज, ही शुड बी अ गुड मॉडल फॉर माई एड, सो दैट माई ad and my product becomes different from the product of the competition. So you find ways to make your products different from that of competition. अब question ये arise करता है कि आप अपने product को different क्यों बनाना चाहते हैं। You want to make your product different so that when the customers use it, वो आपकी प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट्स के साथ से अलग आइडेंटिफाई कर सकें। अगर डिफ्रेंसिएशन नहीं होगी, अगर आपकी प्रोडक्ट और कंपटीशन की प्रोडक्ट आइडेंटिकल होगी, तो क्या फ़र्क पड़ा। जिस दुकान में आपकी प्रोडक्ट नहीं मिलेगी, आप दूसरी प्रोडक्ट खरीद लेंगे। लेकिन अगर आपकी प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएटेड है और डिफरेंट है, तो अगर एक ऐसी दुकान में जहां आपकी प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होगी, आपका कस्टमर उस दुकान को छोड़कर दूसरी मार्केट में जाएगा और दूसरी दुकान में जाएगा जस्ट टू बाय योर प्रोडक्ट, जस्ट टू बाय योर गुड, जस्ट टू बाय द ऑफरिंग दैट यू आर ऑफरिंग, right? So that's the reason why you want your product to be differentiated from your competition. So these are 4, 5, 6 questions that you need to ask yourself if you're starting your business from scratch. Now, what are the various sources of getting money? Whenever you're starting a business, कोई भी business होगा, वो खुद से start नहीं हो सकता, right? ना ऐसा होगा कि आप आज रात को सोए, कल तकिया उठाई, उसके अंदर आपके 500,000 रुपीज़ पड़े हों कि जी इससे बिजनेस स्टार्ट करो। यू नीड टू फाइंड वेज एंड मीन्स टू फाइनेंस योर बिजनेस। नाउ फर्स्ट and the most reliable financing mean is family and friends. आपके अब्बू के पास he has a lot of money, you say, Abu, I have a very good idea for a business and I'm sure that it's going to succeed, so please give me some money. And your father gives you some money, or your elder brother gives you some money, or your sister gives you some money, or you go to a friend and you tell your friend कि यार ये मेरे पास बड़ा ही अच्छा आइडिया है और मुझे पता है कि आइडिया में सक्सीड होगा, तो मुझे पैसे दे दो, और अगर तुमने पैसे नहीं देने तो मेरे साथ पार्टनरशिप कर लो, पार्टनरशिप में हम बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं। सो द वेरी फर्स्ट सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग योर बिजनेस इज फैमिली एंड फ्रेंड्स। एंड if you would just do a research, a very small research, go around your community, go around where you live, go around your neighborhood, and ask them कि जी अगर उस neighborhood में entrepreneurs रहते हैं या ऐसे individuals रहते हैं जिनका small business है, just ask them कि जी आपके पास पैसा कहाँ से आया। Most of them will say कि जी मेरे father ने दे दिया, मेरे बड़े भाई बाहर रहते थे उन्होंने भिजवा दिया और इसलिए मैंने business शुरू किया। The second source of financing your business is personal saving. आप जो सेव करते हैं पैसा, लेट्स से यू वर एम्प्लॉयड इन अ कंपनी, आपने 10 साल अपना पैसा सेव किया, 10 साल के बाद आपने कंपनी की नौकरी छोड़ी और यू स्टार्टेड योर ओन बिजनेस। दैट इज द सेकेंड वे ऑफ फाइनेंसिंग your business. Or you had a piece of land or a piece of building somewhere, you sold that and used that money to finance your small business. So that's the second way of getting money for your business. Third is lenders. Lenders is you go to a bank and you ask for a loan and you say कि जी मुझे लोन चाहिए अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, बैंक आपका लोन अप्रूव करेगा और आपको लोन मिल जाएगा।
दैट्स द थर्ड वे ऑफ गेटिंग मनी फॉर योर बिजनेस. अगेन लोन की डाउन साइड क्या होती है कि आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है. इंटरेस्ट इज बेसिकली द एडिशनल अमाउंट ऑफ मनी दैट यू हैव टू पे. अगर आपने बोरो लेट्स से 100 रुपीज़ किए हैं तो आप एट द एंड ऑफ द पीरियड आप उस बोरोवर को 110 रुपीज़ देते हैं. 100 रुपीज़ इज द अमाउंट दैट यू बोरोड एंड 10 रुपीज़ इज द इंटरेस्ट दैट एक्यूमुलेटेड ऑन दैट 100 रुपीज़. देन यू हैव इन्वेस्टर्स एज वेल. आपके पास पूरा पैसा नहीं है, आप कहते हो कि जी मेरा ये आइडिया है, मेरी ये रिसोर्सेज हैं, आप भी मेरे साथ इन्वेस्ट कीजिए और मैं आपको कोई प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट दे दूंगा, या आप भी मेरे साथ इन्वेस्ट कर लीजिए. यू विल बी पार्ट ओनर ऑफ द बिजनेस. सो दैट इज अगेन अनदर वे ऑफ फाइनेंसिंग योर स्मॉल बिजनेस. एंड फाइनली अ लॉट ऑफ टाइम गवर्नमेंट भी आपके बिजनेसेस को सपोर्ट करती है, आपके बिजनेसेस के लिए, स्मॉल बिजनेसेस के लिए लोन देती है. गवर्नमेंट ये क्यों करेगी? बिकॉज ऑफ द रीजंस that we studied in lecture number 7. क्यों करेगी? ताकि जॉब क्रिएशन हो. क्यों करेगी? क्योंकि आपके स्मॉल बिजनेसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेशन करते हैं. क्यों करेगी गवर्नमेंट सपोर्ट? बिकॉज दे कंट्रीब्यूट अ लॉट टुवर्ड्स द gross domestic product or GDP as well. So these are 5 different sources जिनसे के through आप अपने small business को finance कर सकते हैं. Now in addition to those 5 sources, there's another source of financing which we call as venture capital companies. पाकिस्तान में अब इन companies का trend काफ़ी ज़्यादा हो गया है. Till a decade back, let's say, ये trend इतना ज़्यादा नहीं था, but now a lot of small businesses are being financed by your venture capital companies. Now, what's a venture capital company? A venture capital company is basically a group of small investors who invest in companies जिनके बारे में वो श्योर होते हैं कि ये कंपनीज के पास बहुत अच्छा आइडिया है, उनके पास बहुत अच्छी गुड्स एंड सर्विसेज हैं, और ये ऐसी कंपनीज हैं जो कि फ्यूचर में प्रॉफिट कमा सकती हैं, प्रॉफिट बना सकती हैं, और इनके चांसेस जो हैं वो रैपिड ग्रोथ के बहुत ज़्यादा हैं. सो बेसिकली अ वेंचर कैपिटल कंपनी is basically a small group of investors who invest or give money to these individuals who have a very good idea and whose businesses have a potential for making large sum of profits and whose businesses have a potential to grow in a very fast manner. So that is what venture capital is. Now again, I'm not going to go into great details कि वेंचर कैपिटल क्या होता है, किन टर्म्स एंड कंडीशंस पर वो लोन देते हैं. इस पॉइंट इन टाइम पे आपके लिए बहुत काफ़ी है कि आपको ये डेफिनेशन आनी चाहिए कि वेंचर कैपिटल कंपनीज क्या होती हैं. एंड दिस इज एन ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ फंडिंग इन एडिशन टू द 5 that we've done earlier. This is just another way of financing your businesses or your small businesses. ना जब भी हम स्मॉल बिजनेसेस की बात करते हैं, स्मॉल बिजनेसेस में एक और अरेंजमेंट होता है जिसको हम फ्रेंचाइज सिस्टम करते हैं, और बहुत सारे ऐसे स्मॉल बिजनेसेस हैं जो कि फ्रेंचाइज पर चलते हैं. नाउ before I define to you what a franchise is, I should first give you examples of what a franchise is, and then you'll have a slight idea of what I'm talking about. Okay, McDonald's, yummy na? McDonald's is a franchise. Pizza Hut, you want to eat a pizza right now, yes I know. Pizza Hut is a franchise. Hardee's is a franchise. One Potato, Two Potato is a franchise. Subway is a franchise, right? These are all examples of franchise. Now franchise होती क्या चीज़ है? Franchise में ये 3 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं. नंबर 1 फ्रेंचाइजर, नंबर 2 फ्रेंचाइजी, और नंबर 3 फ्रेंचाइज एग्रीमेंट. ना फ्रेंचाइज का सिस्टम वर्क कैसे करता है? होता क्या है कि देयर इज अ कंपनी हु इज ऑलरेडी एन एस्टैब्लिश्ड कंपनी. एस्टैब्लिश का मतलब यह है कि वो बहुत सालों से ऑपरेट कर रही है. एस्टैब्लिश का मतलब यह है कि वो बहुत प्रॉफिटेबल है. एस्टैब्लिश का मतलब यह है कि वो बहुत क्रेडिबल है, एंड एवरीबडी नोज अबाउट दैट कंपनी. नाउ इस कंपनी को एक फ्रेंचाइज सिस्टम में आप फ्रेंचाइजर कहते हैं. So this company becomes a franchisor. Now there's another company in another part of the world, and that company says कि मुझे बिजनेस शुरू करना है, मैं क्या करूँ? मैं बिल्कुल स्क्रैच से बिजनेस शुरू नहीं करना चाहता, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बहुत मसले मसाइल होंगे. आई डोंट वांट टू डू दैट.
and this company says okay, there's this flana company in another country जो कि बहुत मशहूर है और बहुत अच्छी है, और मुझे लगता है कि अगर हम उस पर्टिकुलर कंपनी को पाकिस्तान में ले आएंगे तो वो बिजनेस बड़े अच्छे से करेगी. Okay, so what you do, this company gets in touch with this company and says कि जी हमें आपकी प्रोडक्ट्स जो हैं वो पाकिस्तान में लेकर आनी है. Apparently, this company is called a franchisee. Now, what we're going to do from this point onwards is give names to people. Let's say before McDonald's came to Pakistan, McDonald's was a company जो कि जिसका बहुत नाम था, जो कि बहुत क्रेडिबल थी, जो कि बहुत बिजनेस कर रही थी. पाकिस्तान में एक कंपनी ने सोचा कि जी पाकिस्तान में मैकडॉनल्ड्स नहीं है, लेट्स ब्रिंग मैकडॉनल्ड्स टू पाकिस्तान. नाउ मैकडॉनल्ड्स बिकम्स अ फ्रेंचाइजर जिसके पास प्राइमरी प्रोडक्ट होती है, एंड द अदर कंपनी इन पाकिस्तान जो कि पाकिस्तान में मैकडॉनल्ड्स शुरू करना चाहती थी वो फ्रेंचाइजी बन जाती है. Now the franchisee gets in touch with the franchisor and says that let's get into a franchise agreement. Under the agreement, what happens is that the franchisee gives a particular amount of money to the franchisor for use of the name and of the product. कि फ्रेंचाइजी फ्रेंचाइजर को एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी देता है. वो क्यों देता है? क्योंकि फ्रेंचाइजी फ्रेंचाइजर का नाम भी यूज़ करेगा और उसकी प्रोडक्ट्स भी यूज़ करेगी. दैट्स पार्ट 1 ऑफ द फ्रेंचाइज एग्रीमेंट. पार्ट 2 ऑफ द फ्रेंचाइज एग्रीमेंट इज़ कि जो फ्रेंचाइजर होता है वो फ्रेंचाइजी को सारी टेक्निकल नॉलेज दे देता है, सब कुछ बताता है. प्रोडक्ट कैसे बननी है, गुड कैसे बननी है, बर्गर कैसे बनेगा, फ्रेंच फ्राइज कैसे बनेंगी, A to Z द फ्रेंचाइजर गिव्स ऑल डिटेल्स टू द फ्रेंचाइजी. ये काम फ्रेंचाइजर क्यों करता है? क्योंकि फ्रेंचाइजर चाहता है कि जब फ्रेंचाइजी प्रोडक्ट बनाए तो वो प्रोडक्ट बिल्कुल वैसे ही बने जैसे फ्रेंचाइजर खुद बनाता है. द नेक्स्ट स्लाइड विल गिव यू अ डायग्राम and it will tell you that how a franchise contract works. Now the franchisor in company is the one, in our case let's say McDonald's, and franchisee are the local companies in Pakistan who wanted to bring McDonald's to Pakistan. Franchisee gives money to the franchisor for the use of the name, and the franchisor gives the product and service to the franchisee. And when I say product and service, that means कि every detail, लेट्स से मैकडॉनल्ड के केस में जो पैटी बननी है वो कैसे बननी है, वो किस चीज़ की बननी है, वो किस टेम्परेचर पर फ्राई होगी, वो कितने अरसे के लिए फ्राई होगी, जो बर्गर आएगा वो कैसा होगा, वो कितना होगा, जो फ्रेंच फ्राइज होंगे उनका साइज़ क्या होगा, वो काटेंगे कैसे, वो कितनी देर ऑयल में डलेंगे, वो कैसे फ्राई होंगे. सर्विस के ये डायमेंशंस हैं, इस तरीके से बंदे को ग्रीट करना है, इस तरीके से बंदे को सर्व करना है. फ्रॉम A to Z हर चीज़ के बारे में McDonald's being the franchisor will give information to the franchisee. इसके अलावा वो उसकी परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग भी करेगा फ्रेंचाइजी की. फ्रेंचाइजी कैसे काम कर रहा है, कैसे सर्व कर रहा है, क्यों कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है. परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि नाम तो फ्रेंचाइजर का ही यूज़ हो रहा है. अगर फ्रेंचाइजी की परफॉर्मेंस ख़राब होती, लेट्स से टुडे आई गेट अ बर्गर फ्रॉम मैकडॉनल्ड्स जो कि ख़राब है, व्हाट विल आई से? मैकडॉनल्ड्स का बर्गर ख़राब था. नाम मैंने किसका यूज़ किया? फ्रेंचाइजर का. फ्रेंचाइजी का बिजनेस का तो नाम यूज़ ही नहीं किया, राइट? सो द फ्रेंचाइजर हैज़ टू हैव अ स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर द परफॉर्मेंस ऑफ द फ्रेंचाइजी बिकॉज नाम किसका यूज़ हो रहा है? फ्रेंचाइजर का. I hope you're clear कि franchise agreement क्या होता है, या franchise, when I use the word franchise, what do I mean? So next time when you go and eat a burger at McDonald's, you'll have a very clear idea in your mind कि जी किस तरीके से बन रहा है. Now, franchise system के फ़ायदे या नुकसानात क्या हैं? First up, access to big businesses. Let's say कि जो पाकिस्तान में बिजनेस था, जो फ्रेंचाइजी थी या जो फ्रेंचाइजी थे, अगर वो खुद से अपना बर्गर का ब्रांड लॉन्च करते या अपनी फास्ट फूड चेन लॉन्च करते तो शायद कुछ भी ना होता, लोग खाते भी ना उसको. So when you take a franchise or when you make a franchise agreement with franchisors, what happens is that you get access to big businesses. Then the franchisor can grow
in a very fast manner because franchisor को बहुत सारे पैसे देता है in the form of the franchise fee और इस fee के through आपके franchisor के पास बहुत opportunities आती हैं to grow. Furthermore कि अगर let's say McDonald's खुद पाकिस्तान में लॉन्च करता तो शायद 1-2 ब्रांचेस करता, लेकिन सिंस इसने एक फ्रेंचाइज सिस्टम के थ्रू लॉन्च किया है, उसके अपने पैसे इसमें नहीं लग रहे हैं, सिर्फ फ्रेंचाइजी के पैसे इसमें लग रहे हैं. दैट्स द रीजन दैट यू सी सो मेनी मैकडॉनल्ड्स आउटलेट वर्किंग इन पाकिस्तान. The third advantage of a franchise system is that the franchisee does not build a business from scratch. मैकडॉनल्ड्स का हम नाम यूज करें, मैकडॉनल्ड्स के बारे में सबको पता है. आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन कि मैकडॉनल्ड्स क्या है, आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन कि बिग मैक क्या है, आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन कि मैकडॉनल्ड्स की प्रोडक्ट्स क्या हैं. सो विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन, विदाउट टेलिंग पीपल व्हाट द प्रोडक्ट इज अबाउट, विदाउट इन्फॉर्मिंग द पीपल कि जी हम किस किस्म की प्रोडक्ट को मार्केट में लेकर आ रहे हैं, आपका ऑलरेडी बिजनेस चल पड़ता है just because of the already credible name that you're using. Now these three were the advantages of a franchise system. The disadvantage is the startup cost. A franchisee has to pay a lot of money to the franchisor. So franchise fee होती है वो बहुत सारी होती है. So sometimes it is easier to start up your own business as compared to take up a franchise. So these are a few advantages and a single disadvantages of having a franchise. So इस particular point के साथ I'm just going to summarize कि जब भी आप कोई भी business शुरू करेंगे आपके पास 3 basic options available होंगे. The first option that you will have is that you can buy a business, buy an existing business. The second option that you will have is that you can start your business from scratch, and the third option that you will have is that you can take out a franchise or make a franchise agreement with some famous credible company that you have. Now next thing that we're going to talk about is कि जी आपके small businesses में नए ट्रेंड्स क्या हैं, what are the new things coming when we're talking small businesses, what are the new things in small businesses. First up is e-commerce. There's a huge market for e-commerce. What is e-commerce? E-commerce is shopping through the internet. When you're using the internet to shop, a lot of these small businesses now today have these websites या Facebook pages. A very good example of e-commerce is, let's say कि अगर आप Facebook का अकाउंट यूज करते हैं, Facebook में आप एक सर्च कीजिए मैड शेफ, MAD मैड SHEF chef. What you're going to see is a whole page. Now that mad chef is just a girl, a young lady who's done her MBA, and she's the one जो के cupcakes and cakes and different eatables बनाती हैं. And what e-commerce has done to her business is कि अगर इंटरनेट या e-commerce नहीं होती, her scope of business would have been very small. Word of mouth advertising होती, शायद 10, 12, 15 customers हो जाते. Because of e-commerce, people can go on a website, people can go on a Facebook page, order from there, get prices from there, see the pictures of the products that she's making and decide what they want and what they don't want. So that is what e-commerce has done to small businesses. Next is big businesses crossovers. A lot of time individuals who are working in these big companies, चाहे वो Nestle हो गई या Procter & Gamble हो गई या Microsoft हो गई या Intel हो गई, what they do is कि वो अपने established careers छोड़ के अपना बिजनेसेस शुरू कर देते हैं. अच्छा, अपना बिजनेस शुरू करने की क्या वजह है? फर्स्ट अप, when they are employed in another organization, they have a brainstorming session, उनके पास एक बहुत अच्छा आइडिया आता है और वो उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए अपना बिजनेस शुरू करते हैं. The second reason of starting up their own businesses and leaving their established jobs and starting up their own small businesses is कि वो थक चुके होते हैं नौकरी करके. A lot of time when you will talk to these people जो कि already big companies में job कर रहे थे और अब उनका अपना business है, they'll say कि I was tired of doing my job. I know a person who was working in a very big multinational company and he left his business because he was putting in around 14 hours a day. And at the end of a day he said कि मैं 14 घंटे अपनी नौकरी में लगा रहा हूँ, मुझे टेंशन भी हो रही है, मुझे ब्लड प्रेशर भी हो गया, मैं डायबिटिक भी हो गया हूँ, बेहतर है कि मैं अपना बिजनेस शुरू करूँ, मैं ये 14 घंटे अपने बिजनेस में लगाऊँ, so that
मैं कुछ तो अपनी फैमिली के लिए कर रहा हूँगा. So a lot of people start their own businesses because they're completely burned out in the corporate world. थक चुके होते हैं corporate world में रह रहकर 12, 15, 14 घंटे की नौकरी कर करके. Next, the next new trend in small businesses is that there are more women coming in. अभी जो मैंने आपको मैट शेफ एग्जाम्पल दी, she's just a girl, she's just a young lady who has her own business. इसी तरीके से आपको फेसबुक पर बहुत सारी खवातीन या यंग गर्ल्स या women के ऐसे businesses मिलेंगे जो single handedly अपना businesses चला रही हैं. So these women and have put in a new dimension to running a small business. So instead of just having a male dominated sector, now these small businesses have a lot of females जो के अपने small businesses चला रही हैं. And then global trade and suppliers. आप अपना जब भी हम small businesses की बात करते हैं, your small businesses are not just limited to your own country. अगर आप पाकिस्तान में हैं तो small business का ये मतलब नहीं है कि आप सिर्फ पाकिस्तान में काम करेंगे. अब आप international trade पर जा सकते हैं. आप अपनी प्रोडक्ट यहाँ से बनाकर बांग्लादेश भेज सकते हैं, श्रीलंका भेज सकते हैं, इंडिया भेज सकते हैं, वियतनाम भेज सकते हैं, दुबई भेज सकते हैं. A lot of women who have their businesses of, let's say, जिनकी boutiques हैं, what they do is they make their dresses in Pakistan and they go and have an exhibition in Dubai and they sell it there. That is what we mean कि अब जी आपका global trade हो रहा है. अब आप international level पर trade कर रहे हो. And then again अब small businesses का जो input उनमें आनी है, जो raw material आना, वो भी ज़रूरी नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान से आए. If you're getting inexpensive raw material from China, you're going to get it from there. If you think that China में आपकी product ज़्यादा सस्ती बनेगी, you're going to take your product in China, make it from there and sell it all around the globe. So global trade and suppliers have literally changed the working of how small businesses operate. So be it e-commerce, be it burning out of businessmen, be it more women coming into small businesses, or be it the global trade and suppliers, these are 4 things which have changed the way that small businesses are conducted these days. The next thing that we're going to talk about is that why do small businesses fail? या क्या वजह है? क्योंकि if you discuss it with your parents, अगर आप let's say कि आप आज कहते हैं कि जी मैंने अपना business शुरू करना है और आप ये चीज़ discuss करना शुरू करें अपनी family से और friends से, everybody will say अपना business? तुम्हें मालूम है कि कितने businesses fail हो जाते हैं? सारा पैसा डूब जाएगा, कोई ज़रूरत नहीं है अपना business start करने के लिए. That's the first response that you might get if you're starting your own business. So let's just discuss that what are the various reasons for failure. 32% of the times a small business or any business is going to fail because of poor financial management. आप सही तरीके से अपने finances को manage नहीं कर रहे, आप चीज़ों को लिख नहीं रहे, आप income statement आपकी सही नहीं है, balance sheet आपकी सही नहीं है, budgeting आपकी सही नहीं हो रही, everything is not written down properly. 15% of the times incompetence or inexperience. नॉलेज नहीं है, पढ़ाई नहीं है, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आपको पता नहीं है कि बिजनेस प्लान क्या होता है, आप सेल्स फोरकास्ट के बारे में नहीं जानते हैं, आपको इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट का नहीं पता है, आप स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस नहीं मालूम करते हो. 12% ऑफ द टाइम बैड इकोनॉमिक कंडीशंस. आज अगर पाकिस्तान के आज के हालात में अगर कोई बिजनेस शुरू करे तो चांसेस आर कि सर्वाइव नहीं करेगा. इसमें इंडिविजुअल की फॉल्ट नहीं है, इसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोई अमल दखल नहीं, जस्ट बिकॉज दैट द इकोनॉमी इज इन डूइंग वेल. रिसेशन में अगर आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो चांसेस आर कि आपका बिजनेस सर्वाइव नहीं कर सकता. देन 12% ऑफ द टाइम्स अगेन पुअर बुक्स और रिकॉर्ड्स. आपकी रिकॉर्ड मैनेजमेंट सही नहीं होती है, रिकॉर्ड कीपिंग सही नहीं होती है, कितना रॉ मटेरियल आ रहा है, कितना रॉ मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है, चोरी हो गई आपको पता नहीं, किसी ने बीच से सामान उठा लिया आपको पता नहीं. सो बैड रिकॉर्ड कीपिंग. 11% ऑफ द टाइम मार्केटिंग प्रॉब्लम. प्रोडक्ट आपने बना दी, चीज़ आपके सामने है, आपने कस्टमर को भी तो कन्विंस करना ना कि वो चीज़ खरीद ले. आप मार्केटिंग सही नहीं करते, आप उसको एडवर्टाइज सही तरीके से नहीं करते. सो
सो 11% ऑफ द टाइम्स आपकी मार्केटिंग इश्यूज होते हैं. 15% ऑफ द टाइम स्टाफ और यूनियन प्रॉब्लम्स. बहुत स्ट्रॉन्ग यूनियन है. यूनियन इज जस्ट अ ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज हु वर्क टुवर्ड्स देयर ओन गोल्स, राइट. सो अगर आपके यूनियन प्रॉब्लम से आपके एम्प्लॉयज आपके लिए इशू क्रिएट करें, एम्प्लॉयज सही काम नहीं करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन सही काम नहीं करेगी, ऑर्गेनाइजेशन सही काम नहीं करेगी तो प्रॉफिट नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं होगा तो ऑर्गेनाइजेशन इन लॉन्ग रन फेल हो जाएगी. एंड देन 3% डिड नॉट यूज एक्सटर्नल एडवाइस, उन्होंने एक्सपर्ट से बात नहीं की. सो दीज आर वेरियस रीजंस व्हाई बिजनेस कैन फेल. नाउ ऑन अ पॉजिटिव नोट, जब हमने आपको फेलियर्स की वजह बताई तो हम आपको सक्सेस की भी वजह बताएंगे, सो दैट आप ज़्यादा परेशान नहीं हो कि जी ये तो सिर्फ फेलियर की बात हो रही है. वेरियस रीजंस जिनके थ्रू आपका बिजनेस सक्सेसफुल भी हो सकता है. फर्स्ट अप, हार्ड वर्क, ड्राइव एंड डेडिकेशन. अपने बिजनेस का ये मतलब नहीं है आप नौकरी से छोड़ें कि 14 घंटे काम कर रहे हैं. अपना बिजनेस करूंगा तो काम नहीं करना पड़ेगा. अपना बिजनेस करोगे then you have to work for 20 hours a day because it's going to be your own business. So you need to give in your 110%. You need to work really hard. एक ड्राइव होनी चाहिए. Accomplishment. I have set a goal for myself. I've set an objective for myself. I need to. I will fulfill that goal and I will fulfill that objective. And dedication. जो मैंने सोच लिया वो मैंने करना है. If I've thought of making my business successful, I will make my business successful. Second thing is, and I think the most important thing, that for your business to succeed, it is important that whatever you make, it should be demanded by the customer. अगर आप कोई ऐसी चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं जिसकी मार्केट में डिमांड ही नहीं है तो वो चाहे जितनी अच्छी हो, आपके पास चाहे जितना पैसा हो, आपकी मार्केटिंग जितनी अच्छी हो, आपके पास जितना नॉलेज हो, if people will not want that product, the product will not sell. So it is very, very important that whatever you make and whatever you sell, people should have a need and people should have a want for it. And मैनेजरियल कॉम्पिटेंस. इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जो मैनेजमेंट है उसको पता हो, उसका एक्सपीरियंस हो, उनके पास एबिलिटीज़ हो, उनके पास नॉलेज हो, उनको पता हो कि बिजनेस प्लान क्या है, उनको पता हो सेल्स फोरकास्ट करनी है, उनको पता हो कि फाइनेंसिंग की वेरियस सोर्सेज क्या है, उनको फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में पता हो, उनको मार्केटिंग के बारे में पता हो. एंड फाइनली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, दैट्स व्हाई आई वाज कीपिंग इट फॉर द लास्ट लक. अ लॉट ऑफ टाइम व्हाट हैपेंस इज कि आपकी फर्स्ट तीनों चीज़ें होती हैं. आप हार्ड वर्किंग भी हैं, आप में ड्राइव भी है, आप डेडिकेटेड भी हैं, आपके पास कॉम्पिटेंस भी है, आपकी प्रोडक्ट एंड सर्विस की डिमांड भी है, लेकिन लक नहीं है. एंड इन दैट केस यू कांट डू एनीथिंग. कुछ भी नहीं हो सकता, बिजनेस नहीं चल सकता. और अगर लक नहीं है ना, then you should really not lose hope. It's not meant to be. आपको सिर्फ सोचना चाहिए कि बस नहीं होना था, इसलिए नहीं हुआ. So it is very, 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 very important for you that you need to be lucky. अब very easy example in the sense is that a lot of time what happens is that आप जैसा क्लास में बैठे होते हैं एंड जो सबसे नालायक बंदा होता है आपकी क्लास का, जो बिल्कुल नहीं पढ़ाई करता, बिल्कुल फेल हो रहा है, ही इज द मोस्ट सक्सेसफुल. व्हाई? लक. ही वाज एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम. एंड जो आप हैं, आपने सब कुछ किया बट यू वर जस्ट अनलकी. तो शायद आप उतने सक्सेसफुल ना हो जितना वो आपका दोस्त हो. सो लक प्लेज अ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द सक्सेस ऑफ योर बिजनेस. The next thing that we're going to talk about is बिजनेस पढ़ लिया, एंटरप्रेन्योर पढ़ लिया, किस किस तरीके के आपके बिजनेसेस होते हैं. नाउ वी कैन टॉक अबाउट कि आपका बिजनेस जो है वो कौन सी फॉर्म ले सकता है या लीगल एस्पेक्ट से आपका बिजनेस की क्या क्या टाइप्स हो सकती हैं. फर्स्ट ऑफ इज सोल प्रोप्राइटरशिप. बिल्कुल जब हम डिफाइन करते थे स्मॉल बिजनेस को, हमें बार बार सोल प्रोप्राइटरी की बात करी थी. इट वाज दिस थिंग. सो द वेरी फर्स्ट लीगल फॉर्म दैट योर बिजनेस कैन टेक इज समथिंग कॉल्ड एज अ सोल प्रोप्राइटरशिप. नेक्स्ट अप इज पार्टनरशिप्स. योर partnerships can be general partnerships, your partnerships can be limited partnerships or master limited partnerships. Then you have cooperatives and then you have corporations. जब हम corporations की बात करेंगे तो हम public और private companies की बात करेंगे, हम limited liability की बात करेंगे, हम multinational या transnational companies की बात करेंगे.
नाउ सोल प्रोप्राइटर क्या होता है और उसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जो हैं वो क्या होती हैं. आई हैव जस्ट गिवन यू अ ब्रीफ आइडिया ऑफ व्हाट अ सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है. सोल प्रोप्राइटर इज द सिंपलेस्ट एंड द ईजीएस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस, जहाँ पर एक इंडिविजुअल अपनी रिसोर्सेज को यूज करते हुए बिजनेस शुरू करता है. इट कैन बी दैट स्मॉल ग्रोसरी स्टोर इन योर नेबरहुड, या वो दैट स्मॉल ड्राई क्लीनिंग स्टोर इन योर नेबरहुड, या वो जो दही वाला आपके नेबरहुड में है जिसके ऊपर लिखा था प्रोप्राइटर मोहम्मद एहसान. दैट इज व्हाट अ सोल प्रोप्राइटरशिप इज. ठीक हो गया. नाउ सोल प्रोप्राइटरशिप की एडवांटेजेस एज वेल एज डिसएडवांटेजेस हैं. फर्स्ट अप फ्रीडम. यू आर फ्री टू डू एनीथिंग यू वांट टू डू. यू आर द सोल ओनर. अकेले हैं, अकलौते हैं, जो काम करना है, जब आएंगे दुकान खुल जाएगी, जब जाएंगे दुकान बंद हो जाएगी. यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग. यू आर योर ओन बॉस. सेकेंड इज ईजी टू फॉर्म. दुकान रेंट पर ली नेबरहुड में, वहाँ पर आपने थोड़ी सी सब्जी रखी, थोड़े से फल रखे और आपका बिजनेस शुरू हो गया. सो इट्स वेरी इजी टू फॉर्म. कोई लीगल रिक्वायरमेंट्स नहीं है, कोई सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के पास नहीं जाना है, कोई इशू नहीं है. लो स्टार्टअप कॉस्ट. थोड़ी सी दुकान का किराया 10,000 रुपए, सब्जी मंडी से जाकर सब्जी ली, फिर फल लिया, दुकान में रखा, आपकी फ्रूट एंड वेजिटेबल शॉप इज रेडी. सो देयर वेरी लो स्टार्टअप कॉस्ट. जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो बहुत कम होती है. टैक्स बेनिफिट. आपका सोल प्रोप्राइटरशिप में आप और आपका बिजनेस एक ही चीज होता है. एज अ रिजल्ट ऑफ इट आपके पास बहुत टैक्स बेनिफिट्स आते हैं. वो आप अपने एक्सपेंसेस को एज योर इंडिविजुअल एक्सपेंसेस शो कर सकते हो, बिजनेस एक्सपेंस ना शो करो. एज अ रिजल्ट ऑफ इट आप टैक्स जो है वो रिलेटिवली कम रेट पर दे रहे होते हो. जहाँ पर ये एडवांटेजेस हैं वहीं पर सोल प्रोप्राइटरशिप के डिसएडवांटेजेस भी हैं. फर्स्ट अप अनलिमिटेड लायबिलिटी. Now, this particular concept is very, very important for you. So you need to be very clear of what unlimited liability is. Unlimited liability is that the maximum amount that you will lose in the business can be more than what you've invested in your business. समझ में आई? नहीं. मतलब, let's say you've invested some amount in your business. आपने 1000 रुपीज का बिजनेस शुरू किया. 1000 इसलिए रख रहे हैं सिंपलिसिटी सेक के लिए. ओके. सो 1000 रुपीज का आपने बिजनेस शुरू किया. एक महीने के बाद आपने पूरी कोशिश की और आपका बिजनेस नहीं चला. जब एक महीने के बाद आपने देखा कि अच्छा मैंने किन किन लोगों को पैसे पे करने हैं और मैंने लोन ले लिए और कितने लोगों को मैंने पैसे पे करने हैं, एंड यू सेड कि मुझे तो 2000 रुपए पे करने. ना हुआ क्या कि आपने तो इन्वेस्ट 1000 रुपए किया था और आपकी जो पेमेंट्स थी वो 2000 रुपए की. दैट मीन्स 1000 रुपए एक्स्ट्रा आपकी जेब से जाएगा. दैट इज व्हाट अनलिमिटेड लायबिलिटी इज. दैट द मैक्सिमम अमाउंट दैट यू विल लूज, व्हिच इन आवर एग्जांपल केस वाज 2000, राइट, इज मोर than what you have invested in the business. In our example, that was 1000. So you have lost 2000 while you had only invested 1000 rupees. Right? So that's a disadvantage of a sole proprietorship. Lack of continuity. If today the sole proprietor dies, finishes, goes off, the business closes down as well. So कंटिन्यूटी नहीं है बिजनेस की. एंड रिसोर्सेज ऑफ वन पर्सन. एक बंदे का पैसा यूज होगा, एक बंदे का माइंड यूज होगा, एक बंदे की क्रिएटिविटी यूज होगी. वो बंदा कितनी क्रिएटिव हो सकता है, वो बंदा कितना इनोवेटिव हो सकता है, और उस बंदे के पास कितने पैसे हो सकते हैं. एंड देन अगेन वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, जो कि एक बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है, आई एम वेरी गुड इन ह्यूमन रिसोर्स. मैं बहुत अच्छे से लोगों को डील कर सकती हूँ, बट आई एम वेरी पुअर इन फाइनेंसिंग. सोल प्रोप्राइटर में मुझे फाइनेंसिंग भी करनी है, मुझे मार्केटिंग भी करनी है, मुझे अपने बंदों को भी देखना है. तो फिर मैं बंदों को तो अच्छे से देख लूंगी, लेकिन फाइनेंस के इश्यूज मेरे खराब हो जाएंगे. सो आप सिर्फ एक बंदे की रिसोर्स पर डिपेंडेंट होते हो. एक ही बंदा सारे काम कर रहा होता है जो कि एक्चुअली नहीं कर सकता. सो दैट इज व्हाट सोल प्रोप्राइटरशिप इज, एंड दीज आर द एडवांटेजेस और द डिसएडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप. नेक्स्ट अप इज जर्नल पार्टनरशिप. नाउ जर्नल पार्टनरशिप क्या चीज होती है? जर्नल पार्टनरशिप इज बेसिकली जहां पर मल्टीपल इंडिविजुअल्स आकर अपना बिजनेस शुरू करते हैं. राइट? सो जहां पर सोल प्रोप्राइटर एक बंदा था, पार्टनरशिप इज व्हेन 2 or more than 2 people come together to start a particular business. एडवांटेजेस क्या हैं पार्टनरशिप की? मोर टैलेंट and more money. One person would bring in one person resources. Multiple people means more money
एंड मोर टैलेंट। अब आपके पास मल्टीपल लोग हैं, उनमें से कुछ मार्केटिंग में अच्छे होंगे, कुछ फाइनेंस में अच्छे होंगे, सब के सब अपनी रिसोर्सेज को पूल इन कर रहे होंगे, चाहे वो उनका टैलेंट हो या उनकी फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो। अगेन पार्टनरशिप इज़ वेरी इजी टू क्रिएट, बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत ज़्यादा पेपर वर्क या बहुत ज़्यादा लीगल रिक्वायरमेंट्स नहीं होती हैं उसको फॉर्म करने के लिए। एंड पार्टनर्स आर टैक्स एज इंडिविजुअल्स। आप अगेन जो पार्टनर्स होते हैं उनको आप एज अ बिजनेस टैक्स नहीं करते, आप उनको इंडिविजुअल टैक्स करते हो। अगेन यू नीड टू अंडरस्टैंड इन दिस पॉइंट इन टाइम, इसके जब आप बिजनेस को टैक्स करते हो दैट्स एट अ मच हायर रेट एज कम्पेयर टू इंडिविजुअल्स। और जब आप जिस तरीके से ये पार्टनर्स को जब आप इंडिविजुअल्स कंसिडर करते हो और एक कंबाइंड एंटिटी कंसिडर नहीं करते तो उनका टैक्स रेट ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। द डिसएडवांटेजेस ऑफ partnership is again unlimited liability, lack of continuity and difficult to transfer ownership. Multiple owners हैं, multiple partners हैं, एक पार्टनर निकलना चाहता है पार्टनरशिप से तो उसके लिए बहुत मुश्किल है निकलना, और अगर वो निकल भी जाता है तो किसी नए इंडिविजुअल को अपनी पार्टनरशिप में लेकर आना या उसको नया पार्टनर बनाना is not that easy. Now, these are the general advantages and disadvantages of a general partnership. Now, partnerships की various टाइप्स होती हैं। एक जनरल पार्टनरशिप होती है, एक लिमिटेड पार्टनरशिप होती है। जो आप अभी स्लाइड देख रहे हैं दैट इज अबाउट द जनरल पार्टनरशिप। लिमिटेड पार्टनरशिप इज अगेन द सेम थिंग, लेकिन लिमिटेड पार्टनरशिप्स में आपकी लिमिटेड लाइबिलिटी होती है इंस्टेड ऑफ अनलिमिटेड लाइबिलिटी। दैट मीन्स कि लिमिटेड पार्टनरशिप में आपके पास ऐसे पार्टनर्स होते हैं जिनकी लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। व्हाट इज लिमिटेड लाइबिलिटी? लिमिटेड लाइबिलिटी इज द मैक्सिमम अमाउंट दैट यू कैन लूज इन द बिजनेस is the amount that you've invested in the business. अगर आपने 1000 रुपीज बिजनेस में इन्वेस्ट किए हैं तो आप मैक्सिमम अमाउंट जो कि लूज कर सकते हो वो 1000 रुपीज ही होगा, उससे ज़्यादा आप लूज नहीं करोगे, एंड दैट इज एन एडवांटेज फॉर अ पर्टिकुलर बिजनेस, राइट। जब हम लिमिटेड पार्टनरशिप की बात करते हैं तो उसमें कुछ आपके ऐसे पार्टनर्स होते हैं जिनके पास लिमिटेड लाइबिलिटी की ऑप्शन होती है। हाउएवर ये पार्टनर्स जिनके पास लिमिटेड लाइबिलिटी होती है दे डू नॉट हैव एनी से इन द ऑपरेशंस एंड द रनिंग ऑफ द बिजनेस। एंड देन देयर इज अ थर्ड टाइप ऑफ पार्टनरशिप एज वेल, व्हिच इज अ मास्टर जनरल पार्टनरशिप। Now, मास्टर जनरल पार्टनरशिप में क्या होता है कि इसमें आप ऐसी पार्टनरशिप क्रिएट करते हैं जहां आप अपनी पार्टनरशिप के बारे से रिलेट करके आप शेयर्स जो हैं वो इन्वेस्टर्स को इशू करते हैं। हाउएवर जब आप शेयर्स इशू करते हैं तो क्या होता है, फिर ओनरशिप डाइल्यूशन शुरू हो जाती है, मल्टीपल लोग ओनर्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो आप क्या करते हैं कि एक आपका मास्टर पार्टनर होता है जिसके पास 51% शेयर्स होते हैं, ठीक हो गया। और जो मास्टर पार्टनर होता है यही वो पार्टनर होता है जिसके पास सारी राइट्स होती हैं या सारी डिसीजन मेकिंग राइट्स होती हैं इन रनिंग ऑफ द बिजनेस एंड फॉर द ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। सो यस, इन अ मास्टर लिमिटेड in a master partnership you issue shares and you issue stock to investors, to shareholders, but those shareholders again will not have any say in the running and the operations of the business, and there's one partner who is called the master partner who has the maximum amount of 51% of the shares जो कि controlling shares होते हैं, and he is the one or she is the one जो कि आपकी partnership को operate कर रहा होता है। The third kind of the third kind of legal entity that a business can be is a corporation, जहाँ पर sole proprietor सबसे simplest form of business थी, corporation सबसे complex form of business है। जहाँ पर sole proprietor was easy to form, corporations are difficult to form। corporation क्या चीज़ होती है? इसकी 5 different characteristics होती हैं। First up, a corporation can be sued and it can sue people, meaning that a corporation is a separate legal entity than the owner। अगर आज मैं corporation बनाती हूँ, let's say उसका नाम सारा corporation है, then that means that Sara as an individual and Sara corporation as a company will be 2 separate entities। मैं अलग और मेरी corporation अलग। मेरी कॉर्पोरेशन के पास ये राइट्स हैं कि वो किसी इंडिविजुअल को सू कर सके या कोई इंडिविजुअल
उसको सू कर सके। जब सारा कॉरपोरेशन को कोई इंडिविजुअल सू करता है, इसका ये मतलब नहीं है कि सारा तारिक को किसी ने सू किया है, right? So a corporation is a separate legal entity than the owner, and a corporation becomes an entity which can sue people and which other people can also sue. Second thing is that a corporation can buy, hold and sell property. कोई भी आपकी कॉरपोरेशन होगी वो प्रॉपर्टी या एसेट्स को खरीद भी सकती है और सेल भी कर सकती है। अ कॉरपोरेशन कैन मेक एंड सेल प्रोडक्ट्स, एंड अ कॉरपोरेशन सिंस इट्स अ सेपरेट लीगल एंटिटी कैन कमिट क्राइम्स एंड बी ट्राइड एंड पनिश्ड फॉर देम। सो अगर सारा कॉरपोरेशन ने कोई क्राइम कमिट किया है, कोई फाइनेंशियल इश्यूज उसमें अंदर हैं, या मैंने सारा कॉरपोरेशन ने किसी के पैसे खाए, देन सारा कॉरपोरेशन विल बी पनिश्ड एंड सारा कॉरपोरेशन विल बी ट्राइड एंड नॉट सारा तारिक। सो दैट इज व्हाट अ कॉरपोरेशन is. Now, what are the advantages and disadvantages of a corporation? First up, limited liability. I've explained to you what limited liability is, and I hope you're very clear in distinguishing कि limited liability क्या होती है और unlimited liability क्या होती है. Limited liability is that the maximum amount that you can lose in a business is the amount that you've invested in the business. Second is continuity. Owner जाए या रहे या ख़त्म हो जाए, आपकी business concern चलती रहती है, continue रहती है, उसकी existence चलती रहती है. Third is access to more capital. ज़्यादा लोग, ज़्यादा शेयर होल्डर्स, मोर इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व एज ए रिजल्ट ऑफ विच आपको कैपिटल की जो ज़्यादा पैसा या फाइनेंसिंग जो होती है वो आपको ज़्यादा मिलती है. ईज ऑफ ओनरशिप ट्रांसफ़र. आज मैं ओनर हूँ, कल को किसी और ने मुझसे मेरे शेयर्स खरीद लिए तो वो ओनर्स बन जाएंगे. सो for transfer of ownership, all that you need to do is that sell your shares or sell your stocks to somebody else, and that person will become owners of the company. So it's very easy to transfer ownership in cases of corporations. Disadvantages क्या क्या चीज़ें हैं? First up, ease of ownership transfer. जहाँ पर ease of ownership was an advantage, उसी तरीके से ease of ownership is a disadvantage. आप इतने quickly आपकी ownership change हो सकती है कि corporation के लिए problems create हो सकती हैं. So that can work as an advantage as well as a disadvantage. Second up is startup cost. It's not that easy to form a corporation. आपकी legal requirements बहुत हैं. आपको Security and Exchange Commission के पास जाना पड़ेगा. आपको 10,000 documents fulfill करने पड़ेंगे. You need to pay a lot of fees for various things. So setting up a corporation is not that easy. And then there's double taxation as well, which is one of the biggest disadvantages of corporation. What is double taxation? Company double tax होती है. For example, that जो company earnings कमाती है, or whatever the company earns in terms of revenues, it gets taxed on that. That's tax number one. ओके, सो एक टैक्स कंपनी ने अपने रेवेन्यूज पर दिया. जब उन रेवेन्यूज से प्रॉफिट आया और वो प्रॉफिट स्टॉक होल्डर्स को या शेयर होल्डर्स को दिया, तो आप शेयर होल्डर्स की अर्निंग्स पर उनको दोबारा टैक्स करते हो. दैट्स टैक्स नंबर 2. सो दैट इज व्हाट वी कॉल एज डबल टैक्सेशन, वेयर बाय whenever you're the owner of a company or whenever we're talking of a corporation, there's double taxation. One, they get taxed on their earnings. The corporation gets taxed on their earnings, as a result of which the earnings reduces. And once those earnings are given to the stockholders or the shareholders, they're again taxed on those earnings that the shareholders get. So आप एक ही चीज को बार बार 2 दफा taxable, उसको आप उसको टैक्स कर रहे होते हैं, उसको डबल टैक्सेशन हम कहते हैं. So these were the advantages and the disadvantages of a corporation. Now what I'm going to show you is, I'm just repeating the slide that I showed you earlier as well. We've discussed what sole proprietorship is, and I've explained to you कि sole proprietorship क्या होती है. We've talked about partnerships. I explained to you what general partnership is, when 2 or more people are coming together and starting their own businesses. General partnership में unlimited liability होती है. Limited partnership is the same as the general partnership. सिर्फ फर्क क्या है कि limited partnership में limited liability होती है, और जिन पार्टनर्स के पास लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, दे डोंट हैव एनी से इन द ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी. एंड देन यू हैव मास्टर लिमिटेड पार्टनरशिप्स. मास्टर लिमिटेड पार्टनरशिप्स में आप अपने शेयर्स इन्वेस्टर्स को देते हैं. हाउएवर एक पार्टनर के पास 51% शेयर्स होते हैं. ये 51% शेयर्स जिसके पास होते हैं, यू कॉल दैट पर्सन द मास्टर पार्टनर. एंड व्हाट्स द पर्पस? बिकॉज देन दिस मास्टर पार्टनर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग द ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी.
Corporations again, they can be publicly held or privately held, meaning कि जब आप अपने shares general public को sell करते हैं, that's called as a public limited company, और those shares are publicly held. और जब आप अपने shares एक particular group of individuals पर restrict कर देते हैं, for example that everybody, a lot of time जो आपकी privately held shares होते हैं, private companies होती हैं, उनका family business होता है. If you're part of that family or if you're part of that a member of that family, then you can buy shares or sell shares. That's it. If you are not a member of that family, then you cannot buy any shares. So that's the differentiation between a public limited company and a private limited company. A public limited company, everybody and anybody, general public, can buy shares. However, for a private limited company, only a particular group of people can only buy shares for that particular company. Limited liability I told you about. Again, corporations के characteristics ये होते हैं कि professionals run it. एक MBA होगा जिसने finance में किया होगा, marketing में किया होगा, HR में किया होगा. So professionals will be running the company. It's not going to be like that कि कोई भी individual किसी भी qualification के साथ corporation में आ जाएगा और उसके operations को संभालेगा. Professionals who know what they're doing, who have the requisite knowledge, requisite skills and requisite abilities will be the ones जो कि आपकी companies को या corporations को run कर रहे होंगे. And finally, your corporations can be multinationals. Multinationals are those companies जहाँ पर headquarter एक country में होता है और operations multiple countries में होते हैं. Nestle, for example, is a multinational. Telenor is an example of a multinational company. Procter & Gamble is an example of a multinational company whereby they have headquarters in one country and they have operations in so many other companies. Right? Now in this particular slide, there's another thing which is called as S corporations. Now S corporations are not here in Pakistan, and S corporations are basically a combination of a corporation and a partnership. So होता क्या है कि होती वो corporation है लेकिन उसको tax advantages वही मिलती हैं जो कि एक partnership की company को मिल रही होती हैं. But we're not going to discuss S corporation in detail. One, because they're not in Pakistan, and two, the simple concept is that an S corporation is a corporation which has certain characteristics of a partnership. और वो characteristic क्या है? वो characteristic सिर्फ ये है कि उसको tax advantage वही मिलती है जो कि एक partnership company को मिलती है. Then the last thing in this slide that we haven't done is cooperatives. Now what's a cooperative? A cooperative basically is a group of people coming together to start a business so that business can benefit that group of people. Now cooperatives Pakistan में lot of time housing projects में बहुत ज़्यादा होते हैं. Housing cooperative societies बन जाती हैं. एक particular housing project होता है. उस housing project क्या चीज़ होती है? जहाँ पर residential घर या apartments बन रहे हो. उस housing project के लिए एक cooperative बन जाती है. उस cooperative के members कौन होते हैं? वही लोग जो उस housing project में रह रहे होते हैं. उस cooperative का purpose क्या होता है? To look after the interest of people living in that housing project. So a cooperative is basically a group of people, a small group of people who form a company, who form a business to look after the interest for a particular group of people or for a particular locality or for those individuals living in that locality. So that is what a cooperative is, जहाँ पर एक particular group of people business बनाता है अपने interest को safeguard करने के लिए. So these are three different types of legal entities that a business can take. Now to end the chapter up, we're going to talk about corporate governance. Corporate governance क्या चीज़ होती है? Corporate governance is basically the role of shareholders, the role of board of directors and the role of employees of the company in running the company. मतलब शेयरहोल्डर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और एम्प्लॉयज़ का क्या रोल है, उनको क्या चीज़ करनी चाहिए और क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए विद रिगार्ड्स टू द डेली ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी. जब भी हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात करेंगे
it generally works in the way that this slide shows you. You have shareholders who are the owners of the company right at the top. The shareholders के बाद आपके board of directors आते हैं, who is a top management who makes the general who decides about the general direction that the company is supposed to take. Then you have officers which is again the middle management जो कि आपके businesses की daily operations को run करते हैं, and then you have the employees right at the end जो कि day to day businesses को conduct कर रहे होते हैं. So corporate governance would incorporate all these 4 different kind of individuals, groups of people, and it's going to the corporate governance would relate to कि इन सब individuals का businesses में या किसी भी business के operations में इन individuals का क्या role होता है. ना जब हम स्टॉक होल्डर्स की बात करेंगे तो हम 2 चीज़ों के बारे में आपको बताते चलें कि जब हम कोई भी स्टॉक शेयर या स्टॉक सेम थिंग एक ही बात होती है, 2 टाइप के होते हैं, या वो प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स होते हैं या वो कॉमन स्टॉक होल्डर्स होते हैं. नाउ डिफरेंस बिटवीन प्रेफर्ड एंड कॉमन स्टॉक होल्डर्स, बोथ ऑफ देम आर ओनर्स ऑफ द कंपनी. उनके पास ओनरशिप ऑफ द कंपनी होती है. हाउएवर द प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स गेट अ प्रायोरिटी over the common stockholders when there's a time of distribution of dividends. For example, company ने 1000 rupees profit में कमाया, इस 1000 rupees को हमने अपने shareholders में distribute करना है. इस 1000 rupees को जब आप distribute करेंगे तो पहले आप अपने preferred stockholders को distribute करेंगे, और जब वहाँ से आपके पास पैसे बचेंगे तब आपके कॉमन स्टॉक होल्डर्स को फिर आपको पैसा मिलेगा. ना जब प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स होते हैं उसमें 2 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. फर्स्ट अप, उनका डिविडेंड फिक्स्ड होता है. जो डिविडेंड आपने डे 1 से सेट कर दिया उनको वही डिविडेंड मिलेगा. चाहे कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट बनाए तब भी वही डिविडेंड मिलेगा, चाहे कंपनी कम प्रॉफिट बनाए तब भी वही डिविडेंड मिलेगा. सेकेंड इज प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स डोंट हैव एनी वोटिंग राइट्स. वो वोट नहीं कर सकते, वो ये डिसाइड नहीं कर सकते कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किसको बनाना है किसको नहीं बनाना. वो कंपनी की फ्यूचर डायरेक्शन के बारे में भी वोट नहीं कर सकते. ऑन दी अदर हैंड कॉमन स्टॉक होल्डर वो स्टॉक होल्डर है जिसको डिविडेंड सिर्फ तब मिलेगा जब कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया होगा. अगर कंपनी लॉस में जाएगी तो कॉमन स्टॉक होल्डर को प्रॉफिट नहीं मिलेगा. सेकेंड इज कि जब डिविडेंड मिलेगा तो पहले प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर को मिलेगा, उसके बाद आपके कॉमन स्टॉक होल्डर को मिलेगा, एंड फाइनली आपके कॉमन स्टॉक होल्डर के पास वोटिंग राइट्स होती हैं फॉर एवरीथिंग दैट दे डू, व्हाटएवर if they need to choose the board of directors, the direction that the company needs to take, जो भी काम होगा वो कॉमन स्टॉक होल्डर्स की वोटिंग राइट्स से ही होगा. Now to end the chapter up, 3-4 things that we need to do. These are issues or topics related to कॉर्पोरेट ओनरशिप से. जब हम कॉर्पोरेशंस की बात करते हैं तब हम इन इश्यूज की बात करते हैं. फर्स्ट अप इज जॉइंट वेंचर्स. जॉइंट वेंचर्स इज व्हेन 2 companies come together, combine their resources to produce a particular thing. For example, Sony Ericsson is an example of a joint venture. Sony is a separate company, Ericsson is a separate company. They wanted to produce cell phones, so they combined their resources to produce a cell phone. That does not mean that the independent existence of both the companies जो है वो खत्म हो गई है. इंडिपेंडेंटली वो भी रहती हैं और एक पर्टिकुलर वेंचर के लिए दे कंबाइन देयर रिसोर्सेज एंड दे प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट. Sometimes joint ventures are also called as strategic alliances. Then you have mergers and acquisitions. Mergers and acquisitions are 2 different companies, they join and they become one. That is what a merger is. Now, difference between merger and acquisition is अगर same size की companies हैं और वो ज्वाइन करती हैं तो उसको आप मर्जर कहते हैं. Acquisition is that one company is big and one company is small, and when they join, a big company joins with a small company, that is called as an acquisition. For example, जब आप Walls और Polka की बात करते हैं, that was an acquisition. Walls was a huge company, it was doing very well, very profitable. Polka, with respect to Walls, was a smaller company. Why was it small? Because it wasn't earning as much money as it should have. It wasn't doing financially well. उसके profits नहीं हो रहे थे. As a result of which, Walls, a bigger company, joined together with Walls or took over Polka. That is called as an acquisition. So merger and acquisition में हमेशा दोनों के cases में companies की independent existence नहीं रहती. When one company joins the other company, then they become one. उनकी independent existence खत्म हो जाती है and a new company is formed. If the size of the 2 companies is same and they join, it's called a merger.
If one company is bigger than the other company and they join, it's called an acquisition. And then you have divestitures and spin-offs. In both these cases, what companies or corporations do is कि if they need to raise money or they think कि उनका एक particular operation जो है वो profitable नहीं आ रहा, so वो अपनी corporation का कुछ particular operations को side पर करके sell off कर देते हैं और उनको इंडिपेंडेंट बना देते हैं एंड इंडिपेंडेंट वो एक अलग बिजनेस बन जाता है. सो there's going to be a big company and it's going to sell off part of its operations to another company, and then there will be two companies, one the original company and then there will be another company which will be formed, which will be a new company, but the work that they will be doing will be the same work that they were doing before. So these are 2-3 various concepts जो कि जब हम corporations की बात करते हैं तो that's going to relate to them. That's the end of chapter number 4 and lecture number 8 for us. Now just a very quick recap of what we've done so far. What we've done so far is that we've just basically discussed कि जी आपका इस पूरे चैप्टर में चैप्टर नंबर 4 में हमें डिस्कस आपसे किया है कि एंटरप्रेन्योर स्मॉल बिजनेसेस क्या होते हैं. वीव डिफाइंड स्मॉल बिजनेसेस फॉर यू. वीव डिफाइंड कि एंटरप्रेन्योर क्या कौन लोग होते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए हैं, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स कौन होते हैं, उनको क्या करना चाहिए. देन वी फर्दर टॉक्ड अबाउट कि स्मॉल बिजनेसेस बंदे फाइनेंशियल रीजंस क्या होते हैं स्मॉल बिजनेसेस शुरू करने के लिए और नॉन फाइनेंशियल रीजंस क्या होते हैं स्मॉल बिजनेसेस शुरू करने के लिए. And then the later part of the chapter we basically discuss कि जी जब भी हम small businesses की बात करते हैं it can take various legal forms उसकी हो सकती हैं. वो sole proprietor भी हो सकता है, वो partnership भी हो सकता है, वो cooperative भी हो सकता है, वो corporation भी हो सकता है. हमने इनकी disadvantages और advantages discuss की और in different legal forms के relation में जो various concepts थे वो भी discuss किए. Then we also further talked about कि जी businesses की success के लिए कौन से फैक्टर्स जरूरी होते हैं और बिजनेसेस वेरियस वजह से अनसक्सेसफुल भी हो सकते हैं और उनकी क्या वजूहात हो सकती हैं. सो दीज वर अ फ्यू कॉन्सेप्ट दैट वी डिस्कस्ड इन चैप्टर नंबर 4 ऑफ योर बुक्स. नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट चैप्टर again a reminder that you need to read your chapter number 5 before you put in the next CD to see the lecture number 9. So till then, thank you.